बिना समझे पढ़ना, जैसे एवरेस्ट चढ़ना, अकेले जंग लड़ना, I can't take it. अब वेदांतु देगा प्रॉब्लम से छुटकारा। समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो समझ आएगा। बेस्ट टीचर्स के गाइडेंस में पढ़ना इजियर होगा। एग्जाम या हो लाइफ, अब से हर स्टूडेंट विनर होगा। समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो Vedantu. Learn live online. To attend a free live class, download the app now. Hello everyone, welcome back to another episode of Neet Crash Course, and today we are going to do center of mass. Not only center of mass, conservation of momentum and also collision will be covered in this, and next two sessions will be having rotation. So for rotation we have two sessions, right? So we'll be doing all the variety of problems here in this class. So my name is Gaurav Gupta and today we are going to start this, right? So those who are seeing me for the first time, a bit of introduction. So my name is Gaurav Gupta and I have taught 5,000 plus students and I have 4 plus years of teaching experience. Without any delay guys, सीधा jump in कर जाते हैं concepts में, right? But before that, a very important announcement. Those who have not downloaded the Vedantu app till now, please go to the Play Store and download it. It is available for the Android till yet. Very soon it will be available for your iOS also. Okay, so please download this app. It will be very useful for you. You will be getting the free doubts here, the study materials and the classroom resources. Okay, also guys, the session PDF for these sessions that we are having, that also will be uploaded in this app only. Okay, chalo. And also this is very important, please like, share and subscribe to the channel of Vedantu Neet Preparation. Great. Before starting with our MCQs, as we always do, थोड़ा सा theory कर लेते हैं, है ना? A bit of theory will do. These are the formulas given that are used for calculating the center of mass. पता होगा आपको, है ना? These formulas simple है, देखो, center of mass of a system of n discrete particles. तो अगर हम ऐसा कुछ coordinate ले लें, let's say this is our coordinate system, and let's say there is some mass m1 which is at a position vector of r1 vector, right? m2 है, वो यहां से कहां पे है, पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर, लाइक दैट m3 r3 m4 r4 ऐसे कंटिन्यूअस है अप टू n. तो सेंटर ऑफ मास क्या लिखते हैं आप, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस ये डैश 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 पूरा चलेगा अप टू n, है ना, एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, मतलब m1 m2 अप टू n. सिंपल फॉर्मूला. इफ यू आर कैलकुलेटिंग सेंटर ऑफ मास ओनली इन x डायरेक्शन, मान लो ऐसा कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दिस इज x एक्सिस, masses are placed here, let's say m1, some mass is placed here at m2, और ये distance है मान लो x1 and this distance is x2, ऐसे continuous चल रहा है. Then what will be the formula guys? Very simple. Then it will be x coordinate of center of mass is equal to m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2. Simple, right? Similarly for y, similarly for z. खत्म, ठीक है? This is very important, and many times in medical examinations also they have asked a question from this. Center of mass of a continuous mass distribution. So these masses that we have seen, ये m1, m2, ये सब point masses थे, है ना? They were situated at a single point, particles. But let's say you have some continuous mass distribution. जैसे कोई rod, जैसे ये pen, mass is distributed along this length, है ना? कोई point mass नहीं है ये, isn't it? So in such cases, how do we calculate center of mass? Using this formula, integral x dm divided by integral dm. अब ये dm क्या होता है? This is small mass of an element. Element का लेने की जरूरत क्या पड़ी, देखो ध्यान से. Let's say you have a rod, ऐसे कुछ, ठीक है? So I want to know what is the center of mass from here. Let's say this is our coordinate system, origin है ये, यहां से मुझे चाहिए where is the center of mass. Now different particles, let's say इसको तोड़ लो बहुत सारे small sections में, okay? Just break it in small sections, ऐसे. ये छोटे section, they are having different masses, है ना? ये मान लो m1 है, this is m2, m3, m4, m5, m6, m7. Now it depends on you how many partitions you will do, right? In how many particles you will break it. After breaking, what will you do? Again you will write this equation.
m1 x1, मान लो ये वाला x1 हो गया, दिस इज x2 x3, like that you will do. If you want accurate results, you should break it into more number of particles, isn't it? बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स लेने चाहिए, और सारे एलिमेंट्स ले लो, बहुत सारे, right? But see how difficult it will become to add all these. अगर आप ऐसा बार बार लिखते जाओ m1 x1 m2 x2 infinite times, not at all possible, right? So the integration will do the same thing that you are trying to do here, and it will take infinitesimal element. तो हम इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं? Let's say this is our rod. You take a small element, very small element of let's say length dx, ठीक है, dx लेंथ का, और let's say इसका जो मास है that is dm, very small element dm, and let's say it is situated at a distance of x. So the center of mass of the system, if you want, then this dm will be shifted right everywhere. तो उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं? देखो x dm divided by integral dm. Now just you can integrate it for the whole length of the rod और तुम्हें आंसर मिल जाएगा. So basically these two things are similar. ये जो आप करना चाहते थे ना फिजिकली मैनुअली, अलग अलग बहुत सारे एलिमेंट्स लेके फिर उनको ऐड कर रहे हैं, इंटीग्रेशन इज द टूल which is doing the same thing for you in very less time and very easily also, है ना? Great. So calculus का power ये है, okay? So if such case arises, we'll use this formula x dm. dm is the small mass of the small particle divided by integral dm. और x क्या है? Origin से उस particle का और उस element का distance, ठीक है? Done. And now questions has been asked from this. हम करेंगे सारे questions. अगर वही चीज y में हो जाए देन दिस, z में हो जाए तो ये फॉर्मूला लगा देंगे. ओके ग्रेट, चलो आगे बढ़ जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम नोइंग द फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास, फ्यू मोर थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर इज लाइक मोमेंटम कंजर्वेशन. व्हेन डू वी कंजर्व द मोमेंटम? मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब क्या है? लेट्स से देयर इज समथिंग हैपनिंग, हम ऐसा लिख रहे हैं p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल. सिंपल केस इसका क्या होता है? कोलिजन में हम मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं, है ना? सो लेट्स से देयर इज सम पार्टिकल ऑफ मास m1 or there is some particle of mass m2. Let's say this is having some velocity v1 and this is having some velocity v2. ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है? And assuming v1 is greater than v2, तो क्या होगा थोड़ी देर बाद? It is traveling faster than this. ये ऐसे आएगा, इससे कोलाइड करेगा. After collision, they can travel with different velocities. तो let's say after collision, this m1 mass is moving with v1 dash velocity. v1 dash change हो गया वो. Similarly, this m2 is traveling with v2 dash velocity. So here we say that when they collide, right? When they collide, ये देखो जब ये इनका collision हो रहा है, then this particle is exerting some force on that particle, है ना? Impulsive force इस तरफ, let's say normal impulsive, and this particle will apply equal and opposite force in this direction, है ना? Third law. तो net force कितना है इस सिस्टम पे? We can say net external force is equal to 0. And this is the condition for momentum conservation. जहां भी आपको दिख जाए net external force on a system is 0, you can apply this momentum conservation. ये इसका basic conservation of momentum का equation है, okay? Condition है, you can say F net 0, momentum is conserved. ठीक है? Basically बहुत सारे लोगों को आता होगा ये सब, but it's my job to just revise it, right? Very fast. समझ में आ गया ये? Great. अच्छा, यहां पे एक और चीज होती है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. आई विल बी डूइंग वन प्रॉब्लम ऑफ दैट एंड देन ओनली आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि क्या होता है एंड व्हाट इज द फॉर्मूला एंड ऑल. ओके, सो फॉर दैट जस्ट वेट फॉर सम टाइम. इन दैट प्रॉब्लम ओनली विल डू दैट. आगे बढ़ जाए क्या? ग्रेट, चलो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज गाइस. दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ मास. प्लीज ट्राई दिस वन. बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, ट्राई करो. व्हाट ही इज सेइंग? 3 masses are placed on the x-axis. One is 300 gram at origin, 500 gram at 40 centimeter in x-axis, and 400 gram at 70 centimeter. So as I told you, always in physics कैसे start करना है? डायग्राम बना लो सबसे पहले, है ना? Draw the diagram of whatever situation is given. तो जो भी writing में है, try to convert that into a diagram. देखो ध्यान से. Let me draw the coordinate system. ये coordinate system हो गया. Okay? This is our 0. x equal to 0, y equal to 0, you can say 0, 0. ठीक है. y में we are not talking क्योंकि y में कुछ दिया ही नहीं, सब कुछ x में ही है, तो why do we worry about y, है ना? अब देखना, फर्स्ट मास वेयर इज इट प्लेस्ड? 300 ग्राम मास इज प्लेस्ड एट ओरिजिन. तो यहां पे आ गया एक मास दैट इज ऑफ 300 ग्राम, ठीक है, ओरिजिन पे. ग्रेट.
नेक्स्ट मास 500 एट 40 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेट्स से दिस इज द डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर और यहां पे रखा हुआ है हमारा मास कितना 500, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट मास कहां पे है नाउ 70 सेंटीमीटर पे 400 ग्राम, तो दिस इज 70 सेंटीमीटर एंड दिस इज 400 ग्राम। नाउ इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, राइट? सेंटर ऑफ मास में ही हैज गिवन ऑल द वैल्यूज, तुमसे बस वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास। वी विल यूज दैट फॉर्मूला, राइट? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 x1 m2 x2 m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस f3, है ना? ग्रेट। तो देखो आई कैन जस्ट शो यू हाउ टू डू दिस। ये फॉर्मूला हमें लगाना है, ठीक है? m1 x1 m2 x2 m3 x3, पहले वाले मास के लिए x1 विल बी 0 बिकॉज इफ यू रिमेंबर दैट वाज एट x इक्वल टू 0 इटसेल्फ, है ना? तो 300 इंटू 0, सेकेंड मास कहां पे था 40 सेंटीमीटर पे, तो 500 इंटू 40, 400 इंटू 70 डिवाइडेड बाई टोटल मास। सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर एज 40 सेंटीमीटर। तो जहां पे सेंटर ऑफ मास होगा कहां पे होगा वो, एट द सेकेंड मास ओनली, ये जो 500 वाला मास था वहीं पे आ गया, ठीक है? चलो ग्रेट। तो करेक्ट आंसर इज ए 40 सेंटीमीटर। आई डोंट थिंक एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दिस, राइट? लेट मी नो गाइस, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो, राइट? ग्रेट, इजी प्रॉब्लम। यस, दिस वन, प्लीज ट्राई दिस वन नाउ। लीनियर डेंसिटी, डू यू रिमेंबर व्हाट इज लीनियर डेंसिटी? फ्रिक्शन में आई डिड वन प्रॉब्लम, राइट? चेन वाला प्रॉब्लम, आई टोल्ड यू व्हाट इज लीनियर डेंसिटी। लैम्डा से इसको डिनोट कर लेते हैं एंड दिस इज द टोटल मास ऑफ द रॉड डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ को ही लीनियर डेंसिटी बोलते हैं। मतलब मास क्या हो जाएगा यहां से, लैम्डा इंटू एल। सो इफ आई वॉन्ट मास ऑफ एनी पोर्शन ऑफ लेंथ आई कैन जस्ट मल्टीप्लाई। लेट से मुझे किसी स्मॉल पोर्शन डीएम का मास चाहिए एंड लेट से उसका जो लेंथ है वो dx है, देन dm विल बी इक्वल टू लैम्डा dx। सिंपल, राइट? जिसका भी मास चाहिए उसको लैम्डा से उसके लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो, मास इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, ठीक है? ग्रेट। अब देखो ध्यान से, रॉड लेंथ इज 3 मीटर इज गिवन, लीनियर डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू x। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीनियर डेंसिटी विच इज लैम्डा, इट इज गिवन एज प्रोपोर्शनल टू x। इट इज अ वंडरफुल प्रॉब्लम, ओके? प्लीज ट्राई टू लर्न हाउ टू डू दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि एग्जाम्स में आते हैं, ओके? और आते रहेंगे। अब ध्यान से देखना व्हाट वी हैव टू डू। लीनियर डेंसिटी जनरली हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट, कि मास पर यूनिट लेंथ का वैल्यू इज कांस्टेंट, बट हियर इज सेइंग कि x के प्रोपोर्शनल है। लेट्स से रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन, तो हम क्या लिखेंगे, एक कांस्टेंट आ जाएगा। लेट्स से दैट कांस्टेंट इज k इंटू एक्स। k क्या है, एनी कांस्टेंट। जस्ट ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए, इक्वल टू लिखने के लिए आई हैव रिटन सम कांस्टेंट k। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन, लैम्डा इक्वल टू kx? एज x इज इंक्रीजिंग लैम्डा इज इंक्रीजिंग, है ना? मतलब मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज लीनियर डेंसिटी इज इंक्रीजिंग, है ना? जैसे जैसे आप x बढ़ाते जा रहे हो, मास पर यूनिट लेंथ इंक्रीज होता जा रहा है। इसका जो डायग्राम दिखेगा आपको रॉड का, दैट शुड बी समथिंग लाइक दिस। देखो, मास पर यूनिट लेंथ इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, राइट? जैसे जैसे आप x बढ़ा रहे हो, लेट्स से दिस इज x, लेट्स से दिस इज सम स्मॉल लेंथ, ये जो पोर्शन है, राइट? इस स्मॉल लेंथ पे मास अपॉन एल का वैल्यू इज लेस, x बहुत कम है तो वो कम है। जैसे ही x इंक्रीज हो गया, मास इन द पर्टिकुलर लेंथ इज इंक्रीजिंग, यानी कि लैम्डा इंक्रीज हो रहा है। और x बढ़ाओ, देखो फिर से मास बढ़ गया पर यूनिट लेंथ, फिर से बढ़ गया, फिर से बढ़ गया। सो x से वो चेंज हो रहा है, राइट? प्रोपोर्शनल टू x का मतलब ये हो गया। दैट मीन्स लैम्डा को आप जस्ट ऐसे लिख लो, k इंटू एक्स, ठीक है? इसकी तो बात हो गई। अब इसको एक बार रहने देते हैं। लेट्स कम बैक टू आवर सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन। दिस इज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास वाला, राइट? मतलब ये तो यूनिफॉर्मली नहीं है, चेंज होता जा रहा है, बट दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड मास, आई कैन से। डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में इफ आई वांट xcm, मतलब सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, देखो, इंटीग्रल x dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रल dm। याद है ना? अभी अभी बताया मैंने, इंटीग्रल x dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रल dm। अब देखो, व्हाट वाज आवर कंसेप्ट? इफ यू हैव अ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, व्हाट वी डिसाइडेड दैट टाइम, हमने ये डिसाइड किया था कि हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, राइट? स्मॉल एलिमेंट ऑफ स्मॉल लेंथ। तो देखो मैंने ले लिया एक स्मॉल एलिमेंट, इसका मास कितना, dm। इसका मास कितना लिख लेंगे हम, dm। लेट्स से दिस लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट इज dx, स्मॉल चेंज इन x, ठीक है? dx इसका लेंथ हो गया और मास हो गया dm। जस्ट नाउ योर सर हैज टोल्ड यू
हाउ टू कैलकुलेट दिस डीएम, कैसे निकालना होता है डीएम? इफ आई वांट डीएम एंड लैम्डा इज गिवन टू मी, देन डीएम विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डीएक्स। याद आया क्या? मास इज इक्वल टू लैम्डा इंटू लेंथ। तो अगर इसका मास चाहिए मुझे, इस स्मॉल लेंथ का, देन व्हाट विल आई डू? लैम्डा इंटू दिस लेंथ डीएक्स। हो गया? ग्रेट। तो डीएम इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डीएक्स। अब इसको यहां पे आप सब्स्टिट्यूट करो। नाउ वन मोर थिंग दैट वी हैव डिसाइडेड कि यहां से मान लो हमने लेंथ ले लिया x, राइट? यहां तक का लेंथ ले लिया x एंड देन स्मॉल एलिमेंट, देन दिस इज हाउ वी हैव टू राइट। देन वी हैव टू इंटीग्रेट इट फॉर द होल लेंथ ऑफ द रॉड। होल लेंथ मतलब यहां पे x का क्या वैल्यू है? 0, और यहां पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? L। तो ये जो इक्वेशन आपने लिखा है दैट शुड बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू L एंड दिस ऑल्सो फ्रॉम 0 टू L, है ना? अब देखो सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशंस को, अब आसान हो गया ये, ध्यान से देखना। सो एक्स सी एम विल बी गिवन बाय इंटीग्रल x, तो x ही रहेगा। व्हाट इज dm? इट इज लैम्डा dx। व्हाट इज लैम्डा? kx। तो dm देखो क्या बन जाएगा यहां से, dm इज इक्वल टू लैम्डा की जगह रखो kx इंटू dx। दिस dm वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो dm को यहां पे रखो, देखो एक x इज ऑलरेडी देयर, वन मोर x स्क्वायर हो जाएगा वो, है ना, इंटू k इंटू dx, ये हो जाएगा। समझ में आया क्या? x स्क्वायर k dx डिवाइडेड बाई, और ये लिमिट कहां से कहां है? 0 टू L, डिवाइडेड बाई अगेन इंटीग्रल dm। तो इंटीग्रल dm क्या है? kx dx, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू L। नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट डन। अब कुछ भी नहीं बचा इसमें, देखना ध्यान से। वी हैव टू जस्ट इंटीग्रेट, राइट? और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको आता है क्या? यस सर, मुझे आता है, आपने बताया था फर्स्ट क्लास में ही, राइट? k क्या है? कांस्टेंट, बाहर ले लो। इंटीग्रल x स्क्वायर dx, x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, सबको याद है ना? ग्रेट। तो वो क्या बन जाएगा? x क्यूब डिवाइडेड बाई 3, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू L, डिवाइडेड बाई ये k भी बाहर आ जाएगा नीचे में, x dx, x पावर 1 मतलब x पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, x स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स आर अगेन फ्रॉम 0 टू L। ये जो k है वो तो कैंसिल हो गया, जो कांस्टेंट था ना, परेशान कर रहा था, कांस्टेंट है कितना पता ही नहीं था, कैंसिल हो गया वो तो। जस्ट पुट द लिमिट्स नाउ। व्हेन यू विल पुट L, ये क्या बन जाएगा? L क्यूब बाई 3 माइनस 0, जब 0 रखेंगे, डिवाइडेड बाई यहां पे L रखेंगे तो क्या हो जाएगा? L स्क्वायर बाई 2। अब क्या आ गया? देखो ये आ गया L क्यूब बाई 3 इंटू 2 बाई L स्क्वायर, मतलब L ये सब कैंसिल हो गए, L इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। दिस इज माई आंसर ऑफ XCM, यानी कि यहां पे है मेरा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, 2/3 L पे। अच्छा, L का वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, दैट इज 3 मीटर। उसने बोला था ये जो रॉड का लेंथ है ना, दैट इज 3 मीटर, ये पूरा लेंथ है 3 मीटर। तो यहां पे 3 मीटर डाल दो आंसर में। सो हाउ मच विल गेट? XCM विल बी 3 इंटू 2/3, 2 मीटर, है ना? इसका आंसर आ जाएगा जस्ट 2 मीटर। टेल मी गाइस, आर वी एबल टू अंडरस्टैंड दिस? अच्छा प्रॉब्लम है, बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन, राइट? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, यू कैन नॉट रिमेंबर द रिजल्ट एंड ऑल, यू हैव टू डू दिस, क्योंकि वो हो सकता है फंक्शन चेंज कर देना, kx को kx स्क्वायर दे देगा, देन रिमेंबरिंग इज नॉट अ गुड थिंग, राइट? यू हैव टू इंटीग्रेट इट बेस्ड ऑन kx स्क्वायर नाउ, इजंट इट? ग्रेट। तो करेक्ट आंसर इज 2 मीटर। आगे बढ़ जाते हैं, है ना? नेक्स्ट प्रॉब्लम विल टेक, चलो, यस दिस वन। सो दिस इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। देखो, इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। यू कैन डू इट विथ द काइनेमेटिक इक्वेशन। काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करके भी आप कर सकते हो, बट आई विल बी टेलिंग यू अ वंडरफुल अप्रोच ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज यू गाइस ट्राई दिस। सबसे पहले तो आप ये ट्राई कर लो, ओके? प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ये क्या कह रहा है? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम अ हाइट 20 मीटर with an initial velocity v0. तो देखो, let me draw the scenario. So this is some height 20 meter. This is the ground level, है ना? ऐसा कुछ है 20 मीटर। यहां से बॉल इज थ्रोन बोल रहा है ना, रिलीज नहीं है, इट इज थ्रोन। सो बॉल लिया, नीचे फेंक दिया with some velocity v0. This is the situation given to me. And now he says it collides with the ground. यहां पे जो ग्राउंड है उसके साथ वो कोलाइड करेगा यहां पे आके, and during collision it loses 50% of its energy. 50% of the energy is gone and again it rebounds to the same height. यहां से 50% एनर्जी लूज करने के बाद कैसे आएगा? ये कोलिजन के बाद ऊपर जाएगा, राइट?
व्हेन समथिंग कोलाइड्स इट विल कम अप, तो वापस आके फिर से वो यहीं पे पहुंच जाता है, सेम हाइट। ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया? बिकॉज इनिशियली इटसेल्फ इट वाज हैविंग सम मोर एनर्जी ना, देखो हमने ऐसे फेंका था उस बॉल को, इट वाज हैविंग सम इनिशियल एनर्जी, तो इवन आफ्टर लूजिंग एनर्जी हियर इट कैन रीच टू दिस पोजीशन अगेन। ठीक है, अब देखो इसको करने के क्या तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट आई विल बी टेलिंग यू द लॉन्ग मेथड, जो बुक्स में भी दिया होता है, दैट आई विल बी टेलिंग, समझ में आ जाएगा तुम्हें। उसके बाद आई विल बी टेलिंग यू द वंडरफुल मेथड ऑफ डूइंग दिस। ओके, जस्ट वन इक्वेशन वी हैव टू राइट और ये हो जाएगा। अब देखना ध्यान से हाउ टू डू दिस वन। इनिशियल वेलोसिटी कितने से आपने रिलीज किया इसको? v नॉट। जस्ट बिफोर कोलिजन कैन आई कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल? ऑब्वियसली आई कैन कैलकुलेट। लेट्स से दिस स्पीड इज vi। vi का क्या मतलब है? v इनिशियल, यहां पे जस्ट बिफोर कोलिजन। कैन आई कैलकुलेट दैट? यस, आई हैव द इक्वेशन v फाइनल स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, है ना, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। कैन आई डू दैट? हाइट इज नोन, राइट, मिल जाएगा, ये vi मुझे मिल जाएगा। ग्रेट। नाउ व्हाट इज गिवन? आफ्टर कोलिजन 50% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट। 50% मतलब हाफ ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट। तो हाउ मच इज रिमेनिंग? हाफ। अगर आपके पास 100 जूल एनर्जी थी, देन 50 इज लॉस्ट एंड 50 इज रिमेनिंग। तो इसका हाफ एनर्जी विल बी रिमेनिंग। दैट मीन्स दिस स्पीड विल नॉट बी इक्वल टू vi। vi से कम होगा ये स्पीड। गेटिंग माई पॉइंट? एनर्जी लॉस हुआ है ना यहाँ पे, तो vi से कम होगा। लेट्स से दैट एनर्जी इज vf। वो एनर्जी कितना है? vf। और उसके बाद ये पार्टिकल यहां पे पहुंच जाता है, इट जस्ट राइजेस टू दिस लेवल, है ना, मतलब यहां पे फाइनल वेलोसिटी इज 0, यही बोलेंगे ना, जस्ट राइजेस टू दिस लेवल, यहां पे जाके रुक गया। तो क्या हो रहा था? देखो पार्टिकल ऐसे नीचे आया, बाउंस हुआ, ऊपर गया और यहां पे जाके रुका, फिर बाद में गिरेगा वो नीचे ऑब्वियसली, बट वी हैव टू कंसीडर अप टू दिस ओनली। क्या क्वेश्चन क्लियर है क्या सभी को? व्हाट इज हैपनिंग हियर? अभी हमने सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया है, वी हैव जस्ट डिफाइंड, राइट, कि क्या क्या दिया हुआ है हमें। गॉट इट गाइस? अब देखो हाउ टू डू दिस प्रॉब्लम। मेथड नंबर 1, बुक वाला मेथड, ध्यान से देखना। दिस इज हाउ वी हैव टू डू। फाइनल वेलोसिटी याद है ना, आफ्टर कोलिजन एंड इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, उन दोनों के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो इज गिवन टू मी एज 1/2। ग्रेट। फाइनल बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2। यहां से आई विल गेट वन रिलेशन ऑफ vf बाय v इनिशियल। ये देखो ना, स्क्वायर को उधर भेज दोगे, व्हाट विल यू गेट? 1/√2। हाफ m और हाफ m तो कैंसिल हो गए, vf अपॉन v इनिशियल विल बी 1/√2। नाउ कैन आई कैलकुलेट vf? कैसे निकालेंगे? देखो vf से वो ऊपर जा रहा था एंड इट रीचेस टू सम हाइट h, फाइनल वेलोसिटी बिकम 0। अगेन बाय यूजिंग द काइनेमेटिक इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, क्या मैं निकाल पाऊंगा vf? यस, वो इतना आ जाएगा √2gh डिवाइडेड बाय vi। vi याद है क्या? व्हेन यू रिलीज्ड इट विथ v नॉट स्पीड, इट रीच्ड विथ vi स्पीड। क्या vi भी निकाल पाऊंगा क्या मैं? यस, ऑब्वियसली vi स्क्वायर विल बी इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2gh, है ना, इतना ही तो होगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये भी आ जाएगा √ ऑफ दिस। Now after doing all these things you will be getting v naught as 20 meter per second. ठीक है, लंबा मेथड है, राइट, इट टेक्स सम टाइम। नाउ लेट्स सी द वंडरफुल मेथड। ठीक है, जस्ट इन 10 seconds और मैक्सिमम 20 seconds you will be getting the answer and we are going to use the energy conservation like anything. देखो ध्यान से, what was given to us? This is some level, this height is 20, ये दिया हुआ था ना, this height is 20। यहां से आपने रिलीज किया कितने वेलोसिटी से? v नॉट से। लेट्स से हियर द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज E। ठीक है, E टोटल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन करने वाला हूं मैं। ठीक है, देखना ध्यान से, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज E। वो E कितना है? डू आई नो दैट? यस आई नो, हाफ m v नॉट स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसके पास कुछ स्पीड है, प्लस mgh, क्योंकि हाइट भी तो देखो, इट इज एट हाइट ऑफ h, राइट, तो पोटेंशियल एनर्जी भी है उसके पास। तो टोटल एनर्जी इज E, जो मुझे पता है E कितना है, राइट, दिस इज द वैल्यू ऑफ E। ठीक है, ग्रेट, समझ में आ गया। द मोमेंट इट कम्स डाउन जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, एनर्जी कितना होगा? E ओनली। क्यों? एनर्जी कंजर्वेशन। इफ इट वॉज हैविंग सम एनर्जी E हियर एंड व्हेन इट कम्स डाउन बिफोर कोलिजन देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी, राइट। आफ्टर कोलिजन 50% लॉस हो जाएगा, दैट आई नो, बट दिस इज जस्ट बिफोर कोलिजन। तो जस्ट बिफोर कोलिजन एनर्जी E ओनली, राइट, एनर्जी कंजर्वेशन नेग्लेक्टिंग ऑल द एयर रेजिस्टेंस।
जस्ट आफ्टर कोलिजन, जब ये ऊपर जाने लग गया, राइट, जस्ट आफ्टर कोलिजन, हाउ मच इज द एनर्जी? E/2, है ना, क्योंकि 50% गया, 50% मतलब हाफ इज लॉस्ट, हाफ इज रिमेनिंग, तो एनर्जी कितना हो गया देखो, E/2. With this E/2 energy, now again there is no loss when it reaches here. कोई एनर्जी में लॉस नहीं होगा. एनर्जी कंजर्वेशन यू कैन अप्लाई बिटवीन दीज टू, राइट. तो यहां पहुंचने के बाद अगेन एनर्जी इज E/2. इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? आई जस्ट रिपीट. यहां पे एनर्जी वाज E. जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एनर्जी इज E. आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, आफ्टर कोलिजन में 50% एनर्जी वेंट अवे, इट वाज अ लॉस, तो E/2 बच गया. एंड अगेन देयर इज नो लॉस, राइट, नो एयर रेजिस्टेंस, नो लॉस. तो यहां पे अगर E/2 था, यहां पे भी इट इज E/2. कैन यू टेल दिस पार्टिकल व्हेन इट इज हियर? यहां पे वेलोसिटी कितना लिया है हमने इसका? 0, राइट, जस्ट वहां पे पहुंच जाता है वो. तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ दिस? बेसिकली इसी पार्टिकल का एनर्जी ओनली mgh, है ना, mgh. तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज mgh, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? E/2 ऑल्सो. कैन आई जस्ट से दैट E/2 इज इक्वल टू mgh? यस, ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट का एनर्जी है ना. E/2 यहां पे था बॉल की एनर्जी, हियर ऑल्सो इट इज E/2, बट दिस बॉल इज हैविंग mgh, नो, दैट ऑल्सो आई नो. तो E/2 कैन बी इक्वल टू mgh. एंड डू आई नो E? यस, देखो E मुझे पता है, उसका हाफ कर दो E/2, तो क्या बन जाएगा? 1/4 mv0 स्क्वायर प्लस mgh डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू mgh, है ना. तो क्या बन जाएगा ये? हाफ, सॉरी, 1/4 mv0 स्क्वायर इक्वल टू mgh माइनस mgh बाई 2, mgh बाई 2. m और m हो गए कैंसल, 2 एंड 2 कैंसल, सो v0 स्क्वायर इज इक्वल टू √2gh. देखो आ गया आंसर. स्क्वायर हटा दो यहां से, मतलब, है ना, स्क्वायर नहीं है, v0 इक्वल टू √2gh, रूट ले लिया ना इस तरफ. h की वैल्यू कितनी थी देखो? 20 मीटर, सो 2 इंटू 10 इंटू 20, दिस विल बिकम 400, √400 इज 20. V0 is equal to 20. Okay, just by using energy conservation and only one relation, हो गया आंसर. Okay, great guys. So that's why work power energy chapter is very important, और एनर्जी कंजर्व करना हमें आना चाहिए. Okay, okay, great guys. तो आपको, आप इंडिपेंडेंट हो, आप कौन सा भी मेथड यूज करना चाहते हो, यू कैन डू, बट दिस विल डेफिनेटली सेव सम टाइम. ओके, चलो गाइस, ग्रेट, आगे बढ़ जाते हैं. Next problem, this one, please try this one now. An explosion breaks a rock into 3 parts in a horizontal plane. कोई horizontal plane है and then there is a rock. ठीक है, let me draw that situation. So there is a rock. This rock is initially at rest, right? Is he saying that rock is moving initially? No, right? Rock तो rest पे चुपचाप पड़ा हुआ था. अचानक से explosion हुआ, boom, और कितने parts में टूट गया? 3 parts में. अब देखना ध्यान से. 3 parts, horizontal plane, 2 of them go off at right angles to each other. इसमें जो 2 parts टूटे ना, let's say this is one part, this and this is the second part, this, they are going at right angles to each other. एक पार्टिकल इधर और एक पार्टिकल इधर. He is saying the first part mass is 1 kg. इसका जो मास है, ये जो पार्टिकल इधर जा रहा है, इसका मास is 1 kg और इसका मास is 2 kg, I guess, right? हाँ, दूसरे वाले का मास है 2 kg. ठीक है, समझ में आ गया. स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल इज 12 मीटर पर सेकेंड. ये जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से, एंड स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकेंड. ओके सर, कोई बात नहीं, समझ में आ गया, ये सब तो गिवन डेटा है. नाउ ही इज आस्किंग इफ द थर्ड पार्ट फ्लाइज ऑफ विथ 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड. इसका स्पीड दिया हुआ है. ही इज आस्किंग देन इट्स मास विल बी. थर्ड वाले का मास नहीं पता है, वो निकालना है. अब देखो ध्यान से, व्हाट इक्वेशन कैन वी अप्लाई हियर? ध्यान से देखना. When explosion takes place, these particles will apply some mutual force, right? Equal and opposite reaction forces on each other. In such case, we always say that net force is 0. है ना, यहां पे जो impulsive forces लगते हैं, they balance out each other, और net force हमेशा क्या हो जाता है? 0. है ना, दोनों particles एक दूसरे पे force लगाएंगे ना, and then they will separate from each other. तो net force is 0. And whenever net force is 0, I can say momentum is conserved. मतलब initial momentum is equal to the final momentum. ये भी पता है मुझे. Initial momentum मतलब before the explosion. Before the explosion, this bomb was at rest, right? जो भी हमें दिया हुआ है, right? Rock ले लो, bomb नहीं है.
this rock was at rest. If it was at rest, initial momentum is 0. If initial momentum is 0, final momentum also should be equal to 0. यानी कि this is the question of just making the net momentum of this system equal to 0, और कुछ नहीं करना है. नेट मोमेंटम इस पूरे सिस्टम का हमें क्या कर देना है? 0, क्योंकि फाइनल मोमेंटम 0 होना चाहिए, बिकॉज इनिशियल वाज 0, इनिशियली रॉक वाज नॉट एट ऑल मूविंग. समझ में आ गया क्या करना है? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? नाउ देखो कैसे करना है. So this particle which is of mass 1 kg moving with 12 meter per second, what is its momentum? Momentum is a vector quantity, direction will be same as velocity, or momentum is mass into velocity. Mass is 1, velocity is 12, momentum is 12. इसका momentum 12 हो गया. What about this particle? Again vector quantity, तो direction same as velocity. 8 2 जा 16, mass into velocity, 8 2 जा 16. इसका momentum is 16. ठीक है? अच्छा, what should be the net momentum of these two? दो वेक्टर्स है ना आपके पास राइट एंगल पे 90 डिग्री पे. हाउ डू वी कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स? ऐसे किसी एंगल पे तो जाएगा ये, एंड द नेट पी नेट जस्ट फॉर टू पार्टिकल्स आई एम कैलकुलेटिंग, राइट, इन दोनों पार्टिकल का. तो पी नेट कितना हो जाएगा? अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर. सही कर रहा हूं क्या? देखो नेट ऐसे निकालते हैं ना, दो वेक्टर्स 90 डिग्री, दिस इज द नेट. हाउ मच इज दिस वैल्यू? दिस विल बी 144 256. 144 प्लस 256 400. 400 का रूट विल बी 20, तो पी नेट आ जाएगा आपका 20. यानी कि नेट मोमेंटम ऑफ दीज टू पार्टिकल्स इन दिस डायरेक्शन इज 20. इफ पूरा नेट मोमेंटम ऑफ 3 पार्टिकल्स हैज टू बी 0, दैट मीन्स द थर्ड पार्टिकल शुड हैव मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड शुड ऑल्सो बी 20. इज इट मेकिंग सेंस? The momentum of 3 particles, net momentum has to be how much? 0. ये पता है मुझे 0 होना है. For 2 of the particles, it is 20 in this direction. How this momentum can be 0, net momentum? If the third particle is having momentum in exactly opposite direction with same magnitude. अगर ये 20 है इस तरफ, तो थर्ड वाले का 20 होना चाहिए इस तरफ, तभी तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, राइट? एंड देन ओनली नेट मोमेंटम कैन बी 0. तो ये एकदम शॉर्ट ट्रिक से हो गया, राइट? नॉट मच वरी. 20 इज द मोमेंटम ऑफ द थर्ड पार्टिकल, और थर्ड पार्टिकल का वेलोसिटी मुझे दिया हुआ है, तो मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल इज 20, दैट शुड बी m3 इंटू v3. v3 इज हाउ मच? 4, तो m3 कितना हो जाएगा? 5, है ना? 4 5 is 20. तो द करेक्ट आंसर इज A, 5 kg. So by seeing the question, you have to decide, you have to find out that which equation you have to use. क्या यहां पे लगने वाला है, राइट? ग्रेट गाइस, चलो आगे बढ़ जाते हैं. आई होप दिस प्रॉब्लम वाज क्लियर टू एवरीवन. 5 इज द करेक्ट आंसर. यस, नाउ ट्राई दिस वन. अ बॉल मूविंग विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड कोलाइड्स हेड ऑन विथ अनदर बॉल, स्टेशनरी बॉल. अनदर वन इज स्टेशनरी हैविंग डबल द मास. क्या कह रहा है? देखो, वन बॉल इज देयर, लेट्स से मास इज m. इट इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, है ना? ग्रेट. और दूसरा बॉल कहां पे है? यहां कहीं पे है, एंड इट्स मास इज 2m. इनिशियल वेलोसिटी 0. मतलब इसको हम v1 लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? v2. एंड v1 is 2, v2 is 0. दिस इज द डेटा गिवन टू अस. आफ्टर कोलिजन, अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है. आई विल बी टेलिंग यू द फॉर्मूला, ओके, डोंट वरी. दोज हु नो द फॉर्मूला ऑफ दिस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कर लो, सॉल्व हो जाएगा. बट दोज हु डोंट नो, प्लीज वेट, आई विल बी टेलिंग यू, ओके? ध्यान से देखो, दिस इज v1, दिस इज v2. आफ्टर द कोलिजन, लेट्स से इन दोनों में कोलिजन हुआ, आई नो मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे नेट फोर्स 0 लगाएंगे, है ना? जो फोर्स ये लगाएगा वो फोर्स ये भी लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, नेट 0 हो जाएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन. लेट्स से फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन फॉर दिस m becomes v1 dash, and final velocity for this 2m after collision becomes v2 dash. Momentum conservation says whatever was the initial momentum, p initial should be equal to p final. तो बताओ इनिशियल मोमेंटम क्या था? ओनली फॉर दिस मास देयर इज सम मोमेंटम. इसका वेलोसिटी तो 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम इज हाउ मच? 2 इंटू m. मास इंटू वेलोसिटी, मास इज m, वेलोसिटी इज 2. इसका मोमेंटम 0 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. इसका इनिशियल मोमेंटम, सॉरी, फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल इज m v डैश. समझ में आ रहा है क्या? m इंटू v डैश, है ना? दिस विल बी m इंटू v डैश. ऐसे लिख लेते हैं इसको, m v डैश प्लस व्हाट अबाउट फॉर दिस? 2m इज द मास, v2 dash is the velocity. तो m v1 dash, 2m v2 dash.
This is momentum conservation, one equation. But how many unknowns? Two unknowns. You cannot solve two unknowns using one equation. Second equation कहां से आएगा? Coefficient of restitution. Let me show you. So this is the coefficient of restitution, that is E का फॉर्मूला v1 डैश माइनस v2 डैश. पता है ना v1 डैश v2 डैश क्या है? डिवाइडेड बाई v2 माइनस v1. तो ये इक्वेशन आ गया एक, एंड दिस इक्वेशन वी हैव ऑलरेडी रिटन, राइट? मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन. नाउ देयर इज जस्ट मैथ्स, फिजिक्स इज अप टू हियर ओनली. आफ्टर दैट यू जस्ट हैव टू सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2. You will be getting the answer as this: v1 dash becomes 0 and v2 dash becomes 1. Okay, समझ में आ गया? हो जाएगा ना? This equation is very important. ये आपको याद रखना है. v1 dash minus v2 dash divided by v2 minus v1, coefficient of restitution. सारी वैल्यूज हमें पता थी ना? v2 कितना था गाइस बताओ? v2 was 0, v1 was 2, सब पता है ना हमें? v1 dash v2 dash are unknown. So you'll be getting one equation from this, one equation from this. Solve करो, you'll get the answer. अच्छा, coefficient of restitution E for perfectly elastic is equal to 1. ये सब पता है ना? perfectly elastic के लिए 1 होता है. अगर perfectly inelastic है तो 0, और अगर elastic plastic है, that is the most general case, generally वही होता है, then it is in between 0 and 1. ठीक है, 0 से 1 के बीच में हो जाता है. ठीक है, great guys. चलो आगे बढ़ जाते हैं. इट वॉज अ गुड प्रॉब्लम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. दिस वन वेरी इजी क्वेश्चन. देखो, अ मास ऑफ 0.5 kg मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 1.5. ये रहा मास, 1.5 से मूव कर रहा है वो ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, राइट? कोलाइड्स विथ अ नियरली वेटलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k इज इक्वल टू 50. अब ये इसके साथ जाके, स्प्रिंग के साथ जाके कोलाइड हो जाता है. तो he is asking the maximum compression in the spring would be. कितना हो जाएगा maximum compression that we need to find out. Okay, चलो करो इसको क्वेश्चन गाइस. What is the answer that you are getting? Tell me. अब देखो ध्यान से. This is having some initial energy. This can also be done by energy conservation. इसके पास कुछ kinetic energy है ना? What is the kinetic energy initial? half mv². ठीक है. अब ये स्प्रिंग से जाके टकराएगा, इट विल कोलाइड विद द स्प्रिंग एंड इट विल ट्राई टू कंप्रेस द स्प्रिंग, है ना? इट विल ट्राई टू कंप्रेस द स्प्रिंग. तो जैसे ही इसको कंप्रेस करने लगेगा, स्प्रिंग विल से आई एम गोइंग टू अप्लाई अ फोर्स ऑन यू. देखो, ये स्प्रिंग को ऐसे आके कंप्रेस कर रहा है. स्प्रिंग विल से नो, आई एम गोइंग टू पुश यू. बट इनिशियली बिकॉज इट इज हैविंग सम एनर्जी, इट विल बी एबल टू कंप्रेस इट फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस, है ना? फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस. जब तक इसके अंदर जान है, जब तक इसके पास वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है, इट विल ट्राई टू कंप्रेस इट, है ना? बट इट्स एनर्जी इज डिक्रीजिंग, है ना? क्योंकि एनर्जी कहां जा रहा है? कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग में. तो लेट्स से ये इसको कंप्रेस करते 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 यहां पे आ गया, एंड हियर द वेलोसिटी ऑफ द बॉल बिकम्स 0. यहां पे इसकी वेलोसिटी बिकम्स 0. समझ में आया क्या ये पॉइंट? जैसे ये कोलाइड हुआ, इट वॉज हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी. Now the kinetic energy is utilized in compressing the spring. So kinetic energy will start decreasing. At a particular point, kinetic energy will be 0. Ball बोलेगा मैं तो थक गया, अब इससे ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकता. And then spring will say कोई बात नहीं, मैं तो कंप्रेस हो गया ना, अब मेरे पास एनर्जी है half kx². Now I'll elongate, right? अब वो उसको ऐसे पुश कर देगा और इधर भगा देगा वापस. Getting my point? What will happen? But हमें पूरे प्रोसेस पे नहीं जाना. We just have to find out that how much is this maximum compression. Let's say x0. Maximum कितना कंप्रेस कर देगा? तो देखो, simple energy conservation. Initially, what is the energy of the system? Only half mv², है ना? When there is no compression, यहां से जब शुरू हुआ half mv². When it will compress it to the maximum extent, इसका kinetic energy will become 0. यही देखा ना हमने, यहां पे velocity 0 हो जाएगी. बट स्प्रिंग विल हैव द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ के x0², वेयर x0 इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग. समझ में आ गया क्या? सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन. यहां काइनेटिक एनर्जी और यहां पे ये बन गई स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी. एंड नाउ यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट, राइट? इसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन ही है. देखो, कैलकुलेशन एक बार आप देख लो आपके रेफरेंस के लिए. हाफ mv² इक्वल टू हाफ kx² लिख लिया, वेयर x इज द मैक्सिमम कंप्रेशन. हाफ और हाफ कैंसल,
वैल्यूज आपको दी हुई है, राइट, कैलकुलेटेड, यू विल गेट x का वैल्यू आ जाएगा 0.15. सो मोस्ट ऑफ यू वे आर गेटिंग द करेक्ट आंसर बिफोर इटसेल्फ, तो दैट इज अ ग्रेट जॉब गाइस, बढ़िया. करेक्ट आंसर इज 0.15. समझ में आ गया? ग्रेट. चलो आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम विल टेक. ओके, चेन. एक चेन वाला प्रॉब्लम हमने किया था फ्रिक्शन में. डू यू रिमेंबर गाइस? हाउ मच मैक्सिमम वेट ऑफ द हैंगिंग चेन शुड बी देयर सच दैट चेन रिमेन्स ऑन द टेबल. बट यहां पे वो क्या पूछ रहा है? ही इज आस्किंग जो हैंगिंग लेंथ था ना, उसको उठा के मेरे को चेन के ऊपर लाना है, टेबल के ऊपर लाना है. जो हैंगिंग पोर्शन ऑफ द चेन है उसको उठा के टेबल के ऊपर रखना है. हाउ मच शुड बी द वर्क डन? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. In books they use integration, calculus and what not, and that is very lengthy procedure. Which chapter we are studying here? Center of mass. I'll be doing this question with the concept of center of mass. चुटकियों में हो जाएगा ये, ठीक है, देखना ध्यान से. How to do this? I'm not going in that integration वाला approach, okay? That is very difficult and less intuitive. ये intuitive भी है और easy भी है ये वाला approach, ठीक है? So that will be doing. एक बार पढ़ लो क्वेश्चन. Length L है, mass M है, lying on a smooth table. 1/3 of its length is hanging vertically. मतलब ये जो पोर्शन हैंग कर रहा है, दिस इज द टेबल, राइट, ये हमारा चेन है ऐसे. द पोर्शन विच इज हैंगिंग इट इज 1/3 ऑफ द लेंथ, मतलब L/3. अच्छा, अगर हैंगिंग पोर्शन का लेंथ L/3 है, देन व्हाट इज द मास ऑफ द हैंगिंग पोर्शन? M/3, राइट. यहां पे तो लैम्डा कांस्टेंट है, तो अगर 1/3 ऑफ द लेंथ हैंग कर रहा है तो कितना मास हैंग कर रहा है? M/3. आर वी क्लियर ऑन दैट? बढ़िया. ही इज आस्किंग द वर्क रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट ऑन टू द टेबल. चलो देखते हैं कैसे करेंगे. डायग्राम, ठीक है, डायग्राम समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल. चेन है, इतना पोर्शन इसका हैंग कर रहा है एंड सम टेबल इज ऑन द, आई मीन सम पोर्शन ऑफ द चेन इज ऑन द टेबल. हाउ मच इज दिस लेंथ? बताओ. L/3 सबको पता है, अभी दिया है ना क्वेश्चन में, इसलिए पता है. व्हाट इज द मास? M/3. ओके, आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस चेन ओवर द टेबल. ये पूरा खसका के ऐसे मुझे टेबल के ऊपर लाना है ना? समझ में आ रहा है? लेट्स से आई वॉन्ट टू डू दिस विथ सेंटर ऑफ मास. देखो, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस हैंगिंग पोर्शन? इफ दिस इज ए यूनिफॉर्म मास डेंसिटी का सिस्टम, एक यूनिफॉर्म रॉड आप ले लो ऐसे, इसका लैम्डा कांस्टेंट है, देन सेंटर ऑफ मास इज एट सेंटर ओनली, राइट. अगर टोटल लेंथ L है तो सेंटर ऑफ मास इज एट L/2. वैसे ही यहां पे व्हाट इज द टोटल लेंथ? L/3. तो वेयर इज द सेंटर ऑफ मास? L/6. इसका हाफ ले लो, है ना? L/6 पे क्या है हमारा? सेंटर ऑफ मास है. दिस सिनेरियो आई कैन ड्रॉ समथिंग लाइक दिस. देखो, ऐसे कुछ चेन है यहां पे. चेन को तो ऊपर वाले चेन को एक बार के लिए भूल जाते हैं. दिस चेन विच वॉज हैंगिंग हियर, इसका सेंटर ऑफ मास इज एट समवेयर हियर L/6 पे, and this mass is how much? total mass M/3. Central mass का मतलब क्या होता है? total mass of this hanging chain is situated at this point at L/6. Now if I want to raise this mass to this height, इतना height ही तो raise करना है, because I have to bring this mass on the table. टेबल का height कितना है इस point से? L/6. तो if you want to do some work to raise this, कितना work होगा वो? mg into h. समझ में आता है ना? वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशन. इफ यू हैव टू रेज दिस सिस्टम फ्रॉम हियर टू हियर, वर्क डन कितना हो जाएगा? mg into h. समझ में आ रहा है? बिकॉज सम फोर्स इज एक्टिंग हियर, mg, और हाइट लेट से दिस इज h, तो कितना वर्क डन होगा? mg into h. समझ में आ गया ना? ग्रेट. अब देखो, हाउ मच इज दिस वर्क डन? हो गया, ये क्वेश्चन हो गया. क्वेश्चन इज डन, नो इंटीग्रेशन, एक बार में खत्म. m कितना है? M/3, है ना? M/3. G इंटू एच, हाइट कितना है? L/6, तो कितना आ जाएगा? mgl डिवाइडेड बाई 18. खत्म. जस्ट फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास को यहां से उठा के टेबल में लाने में हाउ मच डिस्टेंस वी आर मूविंग दैट वी नो. mgh कर दो, यू विल गेट द आंसर. ठीक है, ग्रेट गाइस. mgl/18. अब इंटीग्रेशन में आप क्या करते? यहां से एक x डिस्टेंस पे जाके एलिमेंट लेते छोटा सा dx का, फिर उसको इंटीग्रेट करके पूरा वर्क डन निकालते हैं आप f dx से. सो इट इज बेटर, राइट? ये वाला बेटर है. चलो गाइस, होप यू एंजॉयड. कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है जल्दी से हम देख लेते हैं इसमें. यस, mgl/18, ऑप्शन डी होगा सही. ओके, चलो गाइस, सो दिस वाज सेंटर ऑफ मास
एंड प्लीज रिवाइज दिस लेक्चर, सब सारे क्वेश्चन करके आना नेक्स्ट क्लास में फॉर रोटेशन, बिकॉज दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स विल बी रिक्वायर्ड. जैसे देखो वर्क पावर एनर्जी का कंसेप्ट यहां पे रिक्वायर्ड था, राइट, सेंटर ऑफ मास में, वैसे ही सेंटर ऑफ मास विल बी रिक्वायर्ड इन रोटेशन. तो रोटेशन के हम 2 पोर्शंस करने वाले हैं, रोटेशनल 1 एंड रोटेशनल 2. ब्यूटिफुली ऑल द कंसेप्ट्स विल बी एक्सप्लेन टू यू. ओके, ग्रेट. एंड यस गाइस, अगेन वेदांतु ऐप, राइट, प्लीज डाउनलोड इट. और यहां पे तुम्हें आज के सेशन का पीडीएफ भी मिल जाएगा विथ 5 होमवर्क्स. सो प्लीज डू देम वेरी सिंसियरली. टेल मी इन द कमेंट बॉक्स अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आता है तो, राइट. एंड फाइनली इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कर लो चैनल को वेदांतु नीट. ओके, ग्रेट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय, साइनिंग ऑफ.